السلام علیکم. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک نیک کام کے لیے یہاں پہ جوڑا. اور جب بھی اللہ کے نام سے ہم لوگ جڑتے ہیں تو رحمت کے فرشتے بھی یہاں پہ رحمت نازل کرتے ہیں. اور ہماری جو نیت ہے وہ سب سے بڑی ہوئی ہے. آدمی لوگ کام ہے، تعداد کام ہے، کوئی معنی نہیں ہے. جب نیت ہوتی ہے تو اس پہ جو ہے طاقت ہوتی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج کل جو نفسا نفسی کا جو عالم ہے کسی سے چھپا ہوا نہیں. سب کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے. سب سے زیادہ جو چیریٹی کرنے والی قوم دنیا میں اگر ہے تو مسلمان ہے. کہ چیریٹی کا جو ہمارا جو ایک دین کا حصہ ہی چیریٹی، زکوٰۃ بول کے ہمارے اس میں فرض ہے. ایسا کوئی دوسرے اس میں نظر نہیں. اور زکوٰۃ کا سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار دیے تو انہیں کچھ دینے والا ہونا چاہیے. کہ ہمارے پاس الٹا چل رہا ہے کیونکہ ہم ہر چیز میں الٹا رہے ہیں. ہم لوگ ریورس گیئر میں اسپیڈ میں جا رہے ہیں. اس لیے آج ہماری قوم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی لاچار لاوارث قوم کی طرح ہم لوگ. کیا میں یہ بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے؟ آج جو ہمارا قوم ہے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی میں خلیفہ بنا کے پیدا کیا. ہم لوگ پیدائشی خلیفہ ہے اور ہمارے پر اتنا طاقت ہے. ہم لوگ سب کچھ بولتے وی آر پراؤڈ آف ہمارا ایمان، ہمارا جو قرآن ایک ہے، کلمہ ہے، سب بولتے ہیں. کیا ہم لوگ ایک ہے؟ ہم لوگ ایک نہیں ہے. تو سب کچھ ہمارے پاس وہ نہیں، رونا روتے رہتے ہیں. کرائم کریٹیسائزنگ اینڈ کمپلین یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. مگر کام کرنے کی باری آتی ہے تو آج نظر آ رہا ہے کسی کو بھی دل نہیں. ہم لوگ کا پرابلم کیا ہے؟ ان لوگ کر لیں گے، ان لوگ کر لیں گے، بس ہم لوگ گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے. ہم لوگ کو کسی کو بھی درد نہیں. اور اسلام کا حصہ یہ ہے کہ ایک اگر مومن کدھر بھی دنیا کے کونے میں تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ اس کا درد ہوتا ہے. اگر ایک انگلی میں چوٹ آتی ہے تو پورا جسم میں بخار آتا ہے. اسی طرح مسلمانوں میں ایک قوم ہے، ایک امہ ہے. اگر ایک جگہ پرابلم آتا ہے تو ہم لوگ کو بخار آنا ہے. کیا ہم لوگ کو یہ بخار نظر آ رہا ہے؟ آج کا تعداد نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم لوگ کو یہ بخار نظر آ رہا نہیں. کیونکہ ہم لوگ اس طرح ہے، اس لیے ہم کو اتنا جو ہمارا جو حال ہے یہ اس کے ذمہ دار ہیں. اس لیے نمبر آ رہا ہوگا ہم لوگ کے پاس کیا نہیں ہے. ہم لوگ پہلا پانڈرنگ کرنا ہے. ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں، ہر کوئی کام کم نہیں کر رہے، زیادہ کر رہے. ہر گلی محلے میں ایک تنظیم ہے. ابھی ہم لوگ کرناٹک میں دیکھنے کے لیے نکلے. ہم لوگ 4 سال سے کام کر رہے ہیں. ابھی تک 5000 تنظیم کا نام ہمارے پاس ہے. پورے بھی اچھا کام کر رہے، کوئی بھی برا نہیں کر. سب لوگ اچھا کام کر رہے. پرابلم کیا ہے کہ نہیں ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں، ہم ہمارا کر رہے، تم لوگ تمہارا. سب لوگ مل کے بیٹھنا نہیں چاہتے. مگر سب کا رونا کیا ہے؟ سب کا رونا کیا؟ ہمارا انجینئر نہیں ہے، بولے چکی انجینئر بھی جاتا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر بھی جاتا ہے، ہاسپٹل بھی ہے، لائر بھی ہے، سب کچھ ہے. ہمارا نہیں ہے تو کیا ہے کہ ہمارا ول پاور نہیں نمبر. اور یہ کیوں ہوا ایسا کہ ہم لوگ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بولتے ہیں نا کبھی ہمارے اندر اتفاق نہیں، بیٹھیں گے اور بولتے اتفاق کیسے آئے؟ کیا بولنے سے آئے گا، چلانے سے آئے گا؟ ایسا ملنے سے آئے گا. ہم لوگ ملیں گے تو اتفاق. کرناٹک کے اندر ہم لوگ دیکھیں ہماری جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے، ہمارا امپلائمنٹ کا جو یہ گورنمنٹ میں ہمارے کتنے لوگ کام کرتے ہیں، یہ سب دیکھیں گے تو اتنا ہمارا برا حال ہے. وہ کیا ایک رپورٹ تھا نا سچر کا نکل. ہم لوگ ایک سب سے لاسٹ قوم ہے، گری ہوئی قوم ہے. اور ہم لوگ جو ہے فائنینشیل اسٹرانگ ہے. ہمارا جو پیسہ دکھتا ہے دعوتوں میں، شادیوں میں یا کوئی بھی کمپٹیشن میں، گاڑی پہلا اگر لانچ ہوگی تو ہم لوگ نہیں. مگر ہمارا رپورٹ میں یہ ہے، یہ اس لیے ہوا. اور وہ لوگ ڈونیشن بھی زیادہ دیتے. ہم لوگ ان سے بھی بات کی یار آپ اتنا لیوش کرتا ہے تو نہیں بھائی ہم نے اتنا ڈونیشن دیا، ہم نے کالج ہی بنا دیا، بڑا بڑا کام کر. تو ریزلٹ کیوں نہیں نکل رہا؟ کیوں نہیں نکل رہا؟ یہ سوال آج ہم لوگ ادھر کرنے کے لیے آئے. اگر اس کا ریزلٹ نکالنا تو ہم لوگ کیا کریں؟ اس کے لیے میں نے کیا سوچا ہے کہ ہم لوگ سارے 100% لوگ ایک پلیٹ فارم میں آئے. یہ ناممکن ہے. سبھی کا یہ سوچو ہی نہیں، وہی نہیں سکتا. جو راکٹ سائنس کیا راکٹ سائنس کرتے تو یہ کہ وہ بھی ممکن کر دیا تھا. چاند تک آدمی جاتا ہے. مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں ہے. ابھی میں کچھ بات بولنا نہیں چاہتا. جو ہزاروں ٹائپ کے خدا کو ماننے والے ایک ہو سکتے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکتے. کیا کیوں نہیں ہو سکتے؟
मैं नहीं चाहता बोलना चाहिए, सलीम भाई देखो क्या है मानो, वो लोग नहीं आएंगे, तुम आएंगे क्या? मैं भी नहीं आऊँगा, मैं ही आऊँगा बोलना चाहिए ना। मैं लास्ट टाइम सऊदी में ऐसा ही मैं बोला था, सुलेमान भाई सोचते कि उस्मान भाई करेंगे, उस्मान भाई करते हैं, रहमान भाई करेंगे, करना किसको भी नहीं है और रोते रहना है, क्या रोने से काम होएगा? और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, क्यों नहीं? यही है, हम लोग यही चीज़ में जा रहे हैं। तो एक साथ बोले सलीम भाई, इस बार ना सुलेमान भाई ना उस्मान भाई, आज नज़ीर भाई करेंगे करके मीटिंग बनाए, एक कम्युनिटी सेंटर बना के दिए बड़े कल इनाग्रेशन में आनंद। तो हम लोग क्या सोचे कि हर ताल्लुक में हमारे जो मस्जिदें हैं, हमारा इख्तिलाफ तो ऐसे ही रहेगा, जुट नहीं सकते हम लोग, मगर उसको ख़त्म करना है तो हम लोग को एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर ये कर्नाटक के अंदर कोई प्लेटफॉर्म है तो हम लोग उसके साथ मर्ज हो जाए, हम लोग किसी के साथ कॉम्पीट नहीं करें, जो भी है अगर वो काम करते हैं हम लोग मर्ज हो जाए। अगर नहीं कर रहे तो हम लोग मिल के काम करेंगे, हम लोग कोई डिक्टेट नहीं करेंगे कि ये करो वो करो, हम लोग बोलेंगे क्या हम लोग ये कर सकते हैं। हर ताल्लुक में एक कम्युनिटी सेंटर कैसे होगा? ऐसे एक छोटा हॉल होगा या ऑफिस होगा। हम लोग अभी कुंदापुर में इसका आधा हिस्सा है ना, इसका आधा हिस्सा है, हम लोग को 10,000 में रेंट में मिल गया, हम लोग ले लिए, अभी 100-150 में बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। उसमें हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करते रहते हैं, कभी कुछ गाइडेंस देना है स्टूडेंट्स को। अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 10 क्लास के जो स्टूडेंट हैं आधे से ज़्यादा वेरीफाई। अभी हमारे आने वाली फॉर्म अगर पढ़ी लिखी चाहिए, एजुकेशन करके हम बोलते हैं, तो क्या हम पा सकते हैं? अगर 10 क्लास में हम फेल हो गए तो क्या हम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं? कोई भी बताइए, मैं ये स्पीच नहीं कर रहा, इंटरेक्शन क्या हम लोग कर सकते हैं? 10 क्लास में ही हम लोग 50% फेल, तो पहले हम लोग उधर कोशिश करना चाहिए। 3 महीना पहले बच्चों लोग को हमारा प्रॉब्लम है, हम शादियों को भेजेंगे, छुट्टियाँ करेंगे, यानी केयरलेस करेंगे, 10 क्लास यानी सीरियस नहीं लेंगे। तो इसमें जो एजुकेशन का अवेयरनेस हमारे हर मस्जिद में होगा, उसके लिए कम्युनिटी सेंटर, क्योंकि अगर सुन्नी का मस्जिद में सलाफी लोग नहीं रहेंगे, सलाफी के उसमें सुन्नी लोग नहीं रहेंगे, ये ओपन फैक्ट है, मैं विदाउट हेसिटेशन में ये बोलना चाहूँ। अगर कम्युनिटी सेंटर होगा वहाँ पे सब लोग आएंगे। ये हम लोग प्रैक्टिकली कुंदापुरा में करके देखें, एक कम्युनिटी सेंटर ये 10,000 का हॉल है जो रेंट का, 15,000 का स्टाफ है, और उसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और प्रिंटर। वहाँ से इतना काम हो गया माशाल्लाह कि स्टूडेंट्स भी आए, काफ़ी हम सोचते थे कौन आएगा करके, कितने 400-500 स्टूडेंट आए, 21 लाख रुपया गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप वगैरह CSR है, पब्लिक का जमाया हुआ फंड नहीं, जो मुसलमानों का जो जमा था ज़कात फित्रा सब का वो नहीं, हम लोग अलग से करके 21 लाख रुपया जमा करते एक कम्युनिटी से। तो ये हो सकता है, बल्कि हम लोग प्रैक्टिकली अलहमदिल्ला देखें। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर तालुक में 236 तालुक कर्नाटक में है, हमारे भोजन में 236। अगर हम लोग 236 कम्युनिटी सेंटर बनाए, खर्चा कितना होगा हमारा? कैलकुलेट करके देखो कि 10,000 15,000 सैलरी, या सिटी में बेंगलुरु में होगा तो 20,000 सैलरी, और एक ऑफिस रहेगा, ऑफिस को एक ही हम लोग को दे देगा। अभी शब्बीर बड़ा बिल्डिंग ही दे दी, हम लोग निकले थे, उनको इतना पसंद आ गया बिल्डिंग ही दे दी, उधर 20 बच्चे अभी मुस्तकिल 24 आवर वहीं स्टे करके पढ़ रहे, 6 बच्चे लोग को गवर्नमेंट जॉब मिल गया। क्या ये मुमकिन था? अगर करने से वहाँ तो सोचने से कुछ नहीं होता, करना चाहिए। अगर हमारे हम लोग क्या सोचते हैं मेरे से क्या होगा, अभी यहाँ बहुत लोग नहीं आए, क्यों नहीं आए मानो, अरे वो लोग कर लेंगे, ये लोग कर लेंगे, वो गल्फ में रहते हैं, वो रियल एस्टेट वाले बड़े बड़े लोग हैं, हमारा कुछ काम नहीं, हमारा एक राय का दाना भी वहाँ माने रखता है, ये किसी को नहीं माना। जब कुछ होगा ना, वो क्या कर रहे, हमारा लीडर सही नहीं, तुमने लीडर बनाए क्या? किसको लीडर बनाया? कोई किसी को लीडर बनाया तो कोई तंजीम चैलेंज करके बताओ, चैलेंज ओपन। हाँ, कोई तंजीम अगर किसी को लीडर बनाया है तो बताओ हमने इसको लीडर बनाया, बोलेंगे उनको रिजाइन करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर रहे, वो चोर है, वो डाकू है। अरे तुमने बनाया ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास हैसियत ही नहीं बना, हमारी हैसियत पहला बनाना चाहिए ना। हम लोग अगर 50-60 मस्जिद एक ताल्लुक में रहते हैं, अगर 60 मस्जिद वाले एक कम्युनिटी सेंटर से जुड़ जाएंगे तो एक हैसियत बनेगी या नहीं बनेगी? 50-60 मस्जिद एक ताल्लुक में है, वो कम्युनिटी सेंटर तो है, उसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, महीने का 25-30 हज़ार खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते।
हम लोग बड़े बड़े हॉल बना देते हैं, बड़े बड़े क्या क्या बनाते हैं, स्कूल बना देते हैं। अगर डॉक्टर बोलता है कि बच्चा बीमार है, दूध पीना चाहिए, तो हम लोग गाय खरीदते हैं, दूध नहीं लाते हैं, स्कूल ही बना देते हैं। बाद में रोते रहते कि बच्चे नहीं आ रहे, हमारे बच्चे नहीं। क्यों आएंगे बच्चे लोग? तुमने वो ग्राउंड रूट बनाया क्या ग्रास रूट? सही बात है कई बार। हमारे स्कूल कितने, कौन सा सक्सेसफुल स्कूल है? कितने स्कूल हमारे 10th में कौन सा सक्सेसफुल है बताओ? हमारे ही लोग हमारे गांव में, दूसरे लोग के स्कूल में जाते हैं। तो हमको स्कूल की जरूरत ही क्या है? खाली एसेट हमारे पास करोड़ों का। देखो एक जमीन की कीमत कितनी है? 1 एकड़ 2 एकड़ तो चाहिए ना स्कूल के लिए, उसका ही 2 करोड़ हो, फिर 4 करोड़ की बिल्डिंग, 5-10 करोड़ करके भी रिजल्ट जीरो। इतना करोड़ रुपए डालने के बजाय अगर कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, वहाँ पे सबको जोड़ेंगे, ग्रास रूट से काम करेंगे, दूसरों के स्कूल में पढ़ाएंगे, तो स्कूल बनाने की जरूरत नहीं है। लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बाद में रोते रहना, चलाने नहीं हो रहा है, फिर फंड के लिए इधर उधर हाथ पैर मारना, ये हमारा कौम का आज ये काम हो। और हमारा फंड 90% फंड वेस्ट में जा रहा है, एसेट्स में जा रहा है। हमारे पास बिल्डिंगें बहुत हो गई, पहले हमारे बुजुर्ग दिए हुए वक्त के बिल्डिंगें संभालने वाला कोई नहीं। अभी यही है हॉल, मैं बोलूँगा तो हॉल वालों को नाराज हो जाएंगे, हॉल का हालत है क्या नहीं? ये कैसे होना चाहिए था? यहाँ पे कितने प्रोग्राम होने चाहिए, कितने लोग आना चाहिए। एक आवाज़ देने को तो कम से कम बेंगलोर में इतने लोग रहते हैं क्या? बेंगलोर में इतने लोग हैं, फिर यहाँ के लोग ही नहीं करेंगे, हम लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अभी मैं नाम नहीं लेता, हम लोग कभी भी दूसरा वो अच्छा करेगा, अपने आप पे भरोसा नहीं, दूसरों के ऊपर भरोसा करो, फिर बाद में बोलो रही और ये हमारा वोट लेते, हमारा कुछ नहीं करते। तुम्हारा इससे भी ज्यादा बुरा करना चाहिए। तुमको जब रास्ते में हम लोग को मार पड़ेगा तो हम लोग सुधरेंगे, उससे पहले हम सुधरने वाले नहीं। ये मैं देख लिया, हम लोग हमारा जान देने के लिए भी रेडी है, मगर कोई आने वाला रेडी नहीं, परवाह नहीं, हमें अल्लाह को जवाब देंगे। तुम्हें अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो यहाँ आए उन लोग को नहीं बोलना, जो ये बात सुन रहे उन लोग को अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि आने वाली जो नस्ल है ये रोएगी, लाजिम रहेगी, हमारा ये हाल रहेगा, है क्या नहीं? अगर कोई मुझे बोलना है तो उसके बाद में बोलिए कि कलीम भाई आप ऐसा कैसा बोले, हमारा इतना बुरा हाल है। क्यों हाल है? कि हमारे वजह से हम लोग सब लोग जुड़ना कि पैसा नहीं मांग रहे, हम लोग क्या पैसा मांग रहे हैं? टाइम भी हम जूम मीटिंग बुलाए, जूम मीटिंग में नहीं आते, क्या इतना भी बुरा हाल है? मोबाइल में क्या क्या सब कर लेते, जूम मुझे नहीं आता, मुझे मालूम नहीं होता। तो ऐसा हाल रहेगा, हम लोग कभी सुधरेंगे? बताइए, कभी सुधरेंगे? कभी हमारा हाल सुधरेगा? हमारी फ्यूचर जनरेशन है कि हम लोग ताकतवर है आज, क्या हमारे अपनी ताकतवर फ्यूचर जनरेशन है क्या? ये छोटा सा बाजार से दूध ला लो तो अब तुम जाओ बोलते है क्या नहीं? मोबाइल में बैठे रहते, क्या वो लोग करेंगे क्या? करेंगे क्या? उनको हमें कुछ दे के जाएंगे तो करेंगे। हम ही ऐसा करके गए तो हम लोग को क्या क्या सब बड़े बड़े प्रॉपर्टीज देके गए, और हम लोग का ये हाल, हम लोग कुछ भी नहीं देके जा रहे। और हम लोग देखो बिल्डिंग एसेट बनाना जोश में बना लेते हैं, मस्जिद बना लेते, नमाज ही नहीं है, फायदा क्या? स्कूल बनाए बच्चे नहीं है, फायदा क्या? मदरसा बनाए बच्चे नहीं है, फायदा क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ग्रास रूट से काम होना चाहिए। हर ताल्लुक में एक कम्युनिटी सेंटर होगा, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं ताल्लुक से जुड़े हुए हैं, और आप लोग के पीछे 100 हज़ार लोग हैं। ये बात तो आगे फैलाइए, क्या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पहले इधर हम लोग तय करें। एक कम्युनिटी सेंटर एक ताल्लुक में होगा, वहाँ से हम लोग 10 क्लास के बच्चों से यानी 6 क्लास से स्टार्ट करना चाहिए, और हर मस्जिद में हम लोग राब्ता रखना चाहिए, हमारा डेटा होना चाहिए स्कूल के बच्चों का। 10 का होगा, फिर 12 का होगा, फिर वो लोग इंजीनियरिंग जाना है, उनको जबरदस्ती तुम इंजीनियर बन, इंजीनियर बन के क्या करते? हम लोग को 4 ही पोस्ट हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और अकाउंटेंट और दुबई, इतना ही, 5वां नहीं मानता। माशाल्लाह हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को एनएमओ में इतना सक्सेस मिला अल्हम्दुलिल्लाह। 4 साल में हम लोग को अमीन मुदस्सिर साहब बन के उन्होंने हेल्प की। वो कैसे हेल्प की? क्योंकि हम आगे बढ़े तो करें, एक कदम आगे बढ़ाना है। अल्लाह ताला भी हेल्प नहीं करता है, अगर कौम खुद का हेल्प नहीं करेगा अल्लाह ताला भी हेल्प नहीं करेगा। इससे बुरा हाल आने से पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ। हम लोग एक बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और हम लोग आग की तरफ जा रहे हैं, सबको पता है कि ये आगे आग है, और हम लोग बुलेट ट्रेन में बैठ के यहाँ पे किट बांट रहे हैं, हम लोग जो है मेडिकल एड दे रहे हैं, शादियाँ का एड कर रहे हैं, मगर वो आग का कोई देख भी रहा है, वहाँ हमारी ट्रेन जाके पहुँचेगी, डायरेक्शन थोड़ा चेंज करना है, हम लोग हमारे सोच का डायरेक्शन चेंज नहीं, तब भी किसी को बोलेंगे ना हज़ारों तंजीम है, सलीम भाई हम लोग ये कर रहे, तुम लोग क्या कर रहे, खाली आवाज़ कर रहे, हम लोग ये कर रहे,
चलो भाई कल से हम लोग भी शादियाँ कराएंगे, हम लोग भी किट बांटेंगे, हम लोग भी वो करेंगे और करोड़ों रुपये निकले, हम लोग एक हॉल बनाएंगे, शादी का हॉल बनाएंगे और एक कॉलेज बना देंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्या कम्युनिटी यूनिटी जो रोना रो रहे वो होएगा क्या? अगर वो होना है तो क्या करना है, इसके बारे में मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। अगर हमारा फॉर्म एक मुतहद होना है, ये कम्युनिटी सेंटर के जरिए हो सकता है। हम लोग हर मस्जिद में कम्युनिटी सेंटर से जुड़ेंगे, वो ताल्लुक जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़ेगा। उड़पी में हम लोग एक रोल मॉडल बना रहे हैं और आज बेंगलोर में इसलिए आए क्योंकि कैपिटल है, अगर कैपिटल में काम होगा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जल्दी जाए। तो आप सबका ताउन चाहिए और आपका सबका मैं प्रॉमिस भी यहाँ चाहूँगा, जो भी बोले माशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए हमारे को मिलना और हमारी नीयत को कबूल फरमाए। और आज से हम लोग पॉन्डरिंग करेंगे और सोचेंगे और ये फिक्र लेके चलेंगे कि हमारी कौम मुत्तहिद होना है, एक वन वॉइस में हम चलेंगे तो हमारे वॉइस का वैल्यू रहेगा। आज हमारे वॉइस का वैल्यू है क्या वैल्यू? तो ये बारे में मैं दो बात करके मैं एक बात को खत्म करूँ। देने के लिए बहुत कुछ है और हम लोग ये सब लेके आए हैं जो डाटा हम लोग जो उड़पी में जो काम किए। मैं बोला ना 21 लाख जो 400 बच्चों को मिला, 6 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिला और 4 कम्युनिटी सेंटर बन गए, 5 बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग चाहते कि 236 तालुक में कम्युनिटी सेंटर बने और वहाँ पे मस्जिदें जुड़े। ये एक दिन में नहीं होगा, मायूस होना नहीं चाहिए क्योंकि मायूसी इस्लाम में जायज़ नहीं है, मायूसी जायज़ नहीं है। हम लोग खलीफा बन के पैदा हुए, हम लोग खलीफा बन के मरना चाहिए और हमारे बच्चे भी खलीफा हों। तो इंशाअल्लाह टुगेदर वी कैन, इंशाअल्लाह वी जज़ाकल्लाह।